شکریہ. آئیں کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر فتح باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا تمہاری مریم سے پیدا ہوا 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا مصلوب ہوا مر گیا دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدائے قادر مطلب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر پاک عالمگیر کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں. ہاللیلویا. چلو یہ ساری سیٹنگ پہلے کیا کریں بعد میں مشکل ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. خوش ہیں؟ آج روح کا ماحول اتنا زیادہ ہے. آج کثرت سے خدا یہاں پہ کام کر رہا ہے. محسوس کر رہے ہیں اس کو کیونکہ میری کلیسیا کو بہت سارے تجربات ہیں. بہت ساری کلیسیوں کو میں دیکھتا ہوں وہ لاسٹ تک یہی کہتے ہیں ہم روح القدس کو ویلکم کرتے ہیں ہم روح القدس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن روح القدس ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اور وہ یہاں پہ کثرت سے کام کر رہا ہے. اس لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ روح القدس کے لیے زوردار کلیپنگ کریں اور پھر خداوند یسوع کے لیے ہم کلیپنگ کریں گے. اس لیے یہ روح القدس ہمیں انعام میں دے رکھا ہے. یہ ہمارے لیے تحفہ ہے. یہ ہمارے لیے انعام میں دیا گیا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تم خدا باپ خدا بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے لیتے ہو تو تم روح القدس سے انعام میں پاتے ہو. یہ روح القدس ہمیں انعام میں ملا ہے اور جو چیز انعام میں ملتی ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں. اس لیے روح القدس کی عزت کریں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتاریں ویلکم کریں اور کثرت سے اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں. لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے. اس لیے ہماری زندگی میں یہ کام نہیں کرتا. کھلا رہنے دو یار. کل رات کو آج جو میسج تھا وہ لازر بھائی کا تھا. میں نے اعلان بھی کیا تھا بدھ کو کہ اس بار میں لازر بھائی کو منع نہیں کروں گا بلکہ لازر بھائی کا ہی میسج ہوگا لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے. کل انہوں نے شام کو مجھے فون کیا جب ہم اڈیارہ میں تھے کہ یار کل میں نہیں آ سکتا تو میں نے یقین جانے میں نے میسج تیار نہیں کیا تھا. پھر میں جب ہڈیارے سے آیا رات کو میں نے میسج لکھا تیار کیا ساری رات میں سو نہیں سکا. صبح جب ہم واک پہ تھے تو میں سہارا کو کہا تھا میں کہا ساری رات نا میں سویا نہیں کیونکہ جب آپ میسج تیار کرتے تو یا تو آپ کو بیٹھنے کا موقع چاہیے. اس لیے بدھ کا دن میں کسی کو ملتا نہیں ہوں. اس لیے نہیں ملتا کہ بدھ والے دن میں میسج تیار کرتا ہوں اور اس دن میں پورا جو میرا دارمدار وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں اور پھر میں خدا سے کلام کو مانگتا ہوں. رات کو جب میری آنکھ لگتی تھی تھوڑی دیر کے بعد آج میسج بھی بہت لمبا چوڑا ہے. 15 ایت سے لے کے اینڈ تک 61 ایت میں حل. یہ ساری ایتیں آج پڑھ دینی ہے. پورا میسج یعنی 67 کتنی ایتیں ہیں تقریباً 50 سے اوپر چلے جائیں گی. لیکن آج اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ ہم نے پچھلی بار جہاں سے چھوڑا تھا اسی جگہ سے ہم اس کو شروع کریں گے. آج میرا ٹاپک جو ہے اسحاق کے لیے بیوی کا چناؤ
चुनाव है। इसहाक के लिए बीवी का इंतखाब करना, एक मुलाजिम को भेजना कि वो जाके इसहाक के लिए बीवी ढूंढ के लेके आए, और वो वहां पे जाता है और रूहुल कुदस की हिदायत से ये सारे काम होते हुए नजर आते हैं। ये आम सी स्टोरी नजर आती है। अगर आप इसको बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे तो शायद ये आपके सर से ऊपर से गुजर जाएगी, आप एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ लेंगे। लेकिन जब रूहुल कुदस आपको गाइड करता है तो इसमें बहुत सारे भेद हमें नजर आते हैं। आप जो मुलाजिम थोड़ी देर के लिए जरा खामोशी इख्तियार करें। क्या हो गया? अब हम देखते हैं पिछली बार हमने जहां से छोड़ा 14 आयत से छोड़ा था, लेकिन आज हम 15 आयत से आगे चलेंगे। यहां पे हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि मुलाजिम खुदा को कहता है, खुदावन मैं कैसे जानूंगा, मैं खुदावन उस कुएं पे जाऊंगा और जो लड़की जिसको मैं कहूंगा कि खुदावन ये मुझे पानी पिलाए, अगर मैं उस लड़की को तकाजा करूं कि तू मुझे एक घूंट पानी का पिला, तो वो लड़की अगर ये कहे कि ये पानी पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि खुदावन यही वो लड़की है जो तूने मेरे आका के लिए चुन ली है। इसमें बहुत सारी राज की बातें हैं। ये कलीसियाओं के साथ वादे हैं। जैसे इसहाक के लिए खुदा का बंदा अपने बेटे के लिए अपने मुलाजिम को भेजता है कि तू जाके मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ के लेके आ। आज खुदा ने अपने खातमीन को दुनिया में भेजा हुआ है और वो खुदा के दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। वो दावत दे रहे हैं कि खुदा की दुल्हन जल्द जल्द तैयार हो जाए ताकि दुल्हा आए और अपनी दुल्हन को साथ लेके चला जाए। आज हमें जरूरत है कि हम देखें कि हम दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं, हम इस लायक हैं, क्योंकि जो लायक होगी वही खुदा उनकी दुल्हन ठहराएगी, अदरवाइज दुल्हन हर कोई बन नहीं सकता। आएंगे पढ़े जरा 15 आयत से। 24 बाब उसकी 15 आयत से लेके 67 आयत तक देखेंगे, लेकिन आप सिर्फ इसकी 15 आयत को पढ़ दें, क्योंकि अगर इसको सारी आयतों को पढ़ेंगे फिर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इसको शॉर्ट करेंगे। आसान तरीके से मैं समझाना चाहता हूं कि आप आसान तरीके से इसको सीख सकेंगे। वो जो कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बितूएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। आगे पढ़ दे, थोड़ा और आगे पढ़ दे जरा। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कुंवारी और मर्द से नवाकिफ थी। और ये यहाँ पे हम देखते कि रिबका जो है ये इस पूरे जो मामलात है इस पर पूरा उतरती है। मुलाजिम ने जो कहा, रिबका वहां पे आती है, रिबका आती है और वहां पे वो जब पानी भरने आती है तो अभी देखेंगे कि वो किस तरीके से वो सारे मामलात को देखती है और उस शर्त पर पूरा उतरती है जो उसने खुदा के सामने रखी थी कि खुदान अगर ये निशानियां मैं दूंगा, अगर खुदान ये चीजें मुझे नजर आएंगी तो मैं जान जाऊंगा कि खुदावन तूने मेरे आका के लिए ये लड़की चुन ली है। आज खुदा भी लोगों को चुन रहा है अपनी दुल्हन के लिए। आज हमें जरूरत है कि हम भी बेका जैसे काम करें ताकि हम भी चुन लिए जाएं और खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन तैयार हो सके। जी पढ़े। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे बिल्ली को दौड़ा और कहा, जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी अपने घड़े से मुझे क्या कर थोड़ा सा पानी, क्योंकि उसने खुदा से कहा था कि खुदावन जिस लड़की को मैं ये कहूँ कि तू मुझे पानी पिला, अगर वो मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी तो खुदा मैं जान जाऊंगा कि ये लड़की जो तूने चुन ली है मेरे आका के बेटे के लिए दुल्हन। इसलिए खुदा ये निशानी है, खुदा मैं निशानी मांगता हूँ। और जब बेटा नीचे जाती पानी भर के ऊपर आने लगती है तो जल्दी से उसके पास भाग के जाता है। वो लड़की खूबसूरत भी थी और जाके उसको कहता है कि मुझे जरा पानी पिला। और वो क्या कहती है? जीपी उसने कहा पीछे साहिब, और फौरन घड़े को हाथ पर उतारा और उसे पानी पिलाया। उसको क्या किया? पानी पिलाया। और फिर क्या कहा? जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी पिलाऊंगी, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। वैसे ही जैसे खुदा के बंदा ने, उस नौकर ने, उस मुलाजिम ने खुदा से निशानी मांगी थी कि खुदा जब मैं ये बात कहूँ तो लड़की ये बात कहे कि तू भी पी
और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और मैंने पिछली बार बताया था कि 10 ऊँट से नौकर के पास थे और 10 ऊँट जब थक हार जाते हैं तो एक ऊँट जो है 4 ड्रम पानी के पी सकता है आसानी से। वो आसानी से 4 ड्रम पानी पीता है। और उस लड़की की हिम्मत देखें, क्योंकि खुदा ने उसको चुना था, खुदा ने उसको हिम्मत दी, ताकत दी और वो सारे ऊँटों को 4 ड्रम पानी के भर के पिलाए उसने। वो पानी नीचे से लेके आती थी। उस वक्त कुएं जो थे उनमें सीढ़ियां जाती थी और तो कुएं के अंदर से जाके पानी लेके आते थे। कोई रस्सी वाला सिस्टम, क्योंकि पानी नीचे होता था और लोगों ने सीढ़ियां बनाई तो लोग नीचे जाते थे और पानी लेके आते थे। और वो लड़की नीचे जाती और बार बार लाके पानी भरती है, उस माला उस नौकर को भी पिलाती है और उसके ऊँटों को भी पानी पिलाती है। आज अगर हम खिदमत करते हैं और हम कहें हम थक गए हैं, हमने आज सारा दिन बड़ा काम किया, सारा दिन हमने काम किया, अब शाम को इबादत है मैं नहीं जा सकता, आज छुट्टी का दिन है मैं तो थक गया हूँ, आज मैंने इबादत नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है कि हम नाकाम है। यहाँ पे हम बेटों को देखते हैं कि वो थकती नहीं, क्योंकि खुदा ने उसको चुना था और जिसको खुदा चुन लेता है वो कभी भी नहीं थकता, वो हिम्मत करता है। खुदा उसको ताकत देता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो मुझे ताकत देता है उसी से मैं सारा कुछ करता हूँ। हर बीमारी से लड़ता हूँ, हर लाचारी से लड़ता हूँ, हर तरह की जादू कीड़ी से, हर चीजों से हम क्या कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, क्योंकि खुदा हमें ताकत देता है। जो ताकत वो हमें देता है उसी से हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए ना तो हम थकते हैं ना हम अकते हैं। कई बार लोग मुझे कहते जी आपसे दुआ करवाई, दोबारा मुझे परेशानी, लेकिन मैंने दुआ नहीं करवाई। मैं क्यों, मुझे खौफ, मैंने कहा जी अभी तो दुआ करवाई है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कभी भी दुआ करने से घबराता नहीं हूँ। आप 1000 बार दुआ करवाएं, मैं आपके लिए 1000 बार दुआ करने के लिए तैयार हूँ। आप हिम्मत तो करें। यहाँ पे बेका को देखते हैं कि वो क्या करती है, कहती ये लो पानी पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और वो नीचे जा जाके पानी लेके आती रही और उसने उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया। और फिर आगे क्या हुआ जी, बने जरा। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी, जब तक वो पी न चुके। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई। क्योंकि उस वक्त कुएं के पास हौज बनाए जाते थे ताकि जानवर जो हैं वहां पे आके पानी पी सके। और वो हौज में पानी डालती है, घड़े भर भर के डालती है और ऊँटों को पानी पिलाती है। जी आगे। और उसके साथ ऊँटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा। वो आदमी चुपचाप खुदा की लजाते काम को क्या कर रहा था, देख रहा था। वो देख रहा था कि खुदा कितने अजीब तरीके से काम करता है। जो मैंने खुदा से कहा है खुदा वही काम कर रहा। वो हैरत से उस लड़की को क्या कर रहा था, देख रहा था। उसकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कहता कि ला मैं भी पानी देर सा भरता हूँ, बल्कि वो खुदा को देख रहा था कि खुदा कैसे कैसे बड़े काम करता है। मैंने एक बार पहले भी आपको जिक्र किया था कि एक बार हमने पाँव धोने की रस्म करनी थी। उस वक्त हमारे पास चर्च नहीं था, तो हमने सोचा कि हम पाँव धोने की रस्म घरों में जाके करेंगे। बहुत सारे खातमीन से मैंने बात की कि अगर हम घरों में जाके पाँव धोएं तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खुदा से बात की। मैंने कहा खुदावन अगर तेरी मर्जी है कि हम घरों में जाके पाँव धोएं तो खुदा मैं निशानी मांगता हूँ। खुदा मैं गैस दिलवाने जा रहा हूँ, अगर खुदा मैं गैस दिलवा के 3 बजे से पहले वापस आ गया तो खुदा 3 बजे में आके लोगों के साथ जाऊंगा, अपनी टीम के साथ जाऊंगा और लोगों के पाँव धोऊंगा। और अगर खुदा मुझे गैस ना मिली तो मैं जान जाऊंगा कि खुदा तेरी मर्जी नहीं है। और जब मैं गया तो लाइन लंबी थी, उसमें लंबी कतारें लगती थी गैस की। मैंने भी जाके गाड़ी लगाई और मैं सोच रहा था कि मुश्किल है, खुदा नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर के बाद आगे से आवाज आई कि जी लाइट चली गई है। और जैसी लाइट गई लोगों ने अपनी गाड़ियां लाइन से निकालनी शुरू कर दी। और जब मेरी बारी आई, मैं भी जब आगे जाके गाड़ी मैंने टर्न लेनी थी तो लाइट आ गई और मेरी गाड़ी सबसे आगे पहुंच गई और मैंने गैस ली और 3 बजे से पहले वापस आया। और फिर उस वक्त हमने अपनी टीम के साथ मिलकर पहली बार घरों में जाके लोगों के पाँव धोने की रस्म की। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि ये आदमी भी यही देख रहा था कि अगर खुदा वो लड़की आएगी और वो मुझे पानी पिलाए, मैं उसे पानी का तकाजा करूं, वो पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पिलाए, तो मैं जान जाऊंगा कि खुदा इस लड़की को तूने
चुन लिया है। और वहां पे वो लड़की आती है और वो क्या है, खड़ा होके उसको देख रहा है और सोच रहा होगा कि खुदावन तो कितना मेहरबान है, खुदावन तूने मेरे सफर को मुबारक किया, खुदावन जब मैंने सफर किया मैं यहाँ पे आया तो खुदावन तू मेरे साथ साथ रहा, और खुदावन तूने इस लड़की को तैयार किया और इस लड़की ने वही काम कर लिया है जो खुदावन मैंने तुझसे निशानियां मांगी थी। जाके पढ़े थोड़ा सा। वो आदमी चुपचाप से गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावन ने उसका सफर मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊँट पी चुके तो उस शख्स ने 10 मिस्काल सोने की नथ और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले। 1 नथ और 2 कड़े जल्दी से अपने पास से निकाले और उस लड़की को क्या कर दिए, बना दिए, उसको नथ बना दी, उसको सोने के कंगन बना दिए, और उस लड़की ने भी चुपचाप वो पहन लिए क्योंकि इसमें खुदा की मर्जी थी। और फिर आगे की आवाज पढ़े थोड़ा सा। और कहा जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है। तो उससे कहा तू किसकी बेटी है, मुझे बता तो सही कि तू किसकी बेटी है। जी आगे। और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है। उसने उससे कहा मैं बितूएल की बेटी हूँ, वो मिल्का का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावत को सजदा किया। अब उस आदमी ने, उस नौकर ने, उस मुलाजिम ने क्या किया, झुककर खुदावन को सजदा किया कि खुदावन जो तुम्हें चाहता था वो हो चुका है। खुदावन जो निशानियां मैंने तुझसे मांगी थी खुदावन वो मुझे नजर आ गई हैं, और ये लड़की वही लड़की है जो मेरे आका के लिए दुल्हन चुन ली गई है। आज जब आदमी मेहनत करते हैं और लोग तौबा करते हैं, खुदा की तरफ रुजू करते हैं, तो आदमी भी खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी रूहों को खुदा के पास लाने का काम किया है और खुदा की दुल्हन तैयार करने में उनका करतार नजर आता है। आज आप लोगों को जब दावत दी जाती है तो आप लोग उस दावत को कबूल करें। यहाँ पे ये दावत कबूल की जा रही थी। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दावत कैसे कबूल की जा रही थी। जी पढ़े। तब उस आदमी ने झुककर खुदावन को सजदा किया और कहा खुदावन मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो जिसने मेरे आका को अपने कर्म और रास्ते से महरूम नहीं रखा और मुझे तो खुदावन की राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था। वो बाहर चश्मा पानी के चश्मा पर उस आदमी के पास दौड़ गया। वो दौड़ के उस आदमी के पास जाता है और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ उस आदमी को दावत देता है कि तू हमारे घर आ, तुम्हारे घर आ। वो लड़की ये नहीं करती कि वो अपनी मर्जी से उसको ले जाती है, बल्कि वो अपने भाई को जाके बताती है कि इस तरह एक आदमी आया है और उसने ये सारा कुछ किया है और उसका ऊँट वहां पे है। और वो लाबन जो है वो जाके जल्दी से उसको लेके आता है। और फिर और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मा के नजदीक ऊँटों के पास खड़ा है। तब उससे कहा आए तू जो खुदा की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊँटों को खोला और ऊँटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमी के पास धोने को पानी दिया और खाना उसके आगे रखा। यहाँ पर उसने कहा मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर, जब तक मैं अपना मतलब बयान ना कर लूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। यही रस्म आज कुछ लोगों में पाई जाती है। जब बेटी या बेटे को देखने जाते हैं तो उतनी देर तक पानी तक नहीं पीते जब तक कोई हाँ या ना का जवाब ना मिल जाए। जब तक लड़की पसंद ना आ जाए या लड़का पसंद ना आ जाए उतनी देर तक पानी नहीं पीते। यहाँ पर हमें यही चीज नजर आती है कि उस नौकर ने कहा जब तक मैं अपना मतलब बयान ना कर लूं तो मैं किस मकसद से यहाँ पे आया हूँ उतनी देर तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ जी फिर जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूं नहीं खाऊंगा। उसे कहा अच्छा क्या है? तब उसने कहा कि मैं इब्राहिम का नौकर हूँ और खुदावंद ने मेरी आंखों को बड़ी बरकत दी है
और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडिया और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई उससे एक बेटा हुआ और उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू किनानियों की बेटियों में से जिनके विरुद्ध 53 पे चले जाओ, 53 पे चले जाओ जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी फिर। और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास जब उन्होंने हाँ कर दी तो नौकर ने क्या किया, सोना चांदी जेवरात जो है वो निकाल के उनको तोहफे में दे दिए। आज जब हम खुदा की निजात को, उसके काम को, उसको कबूल कर लेते हैं तो खुदा हमें भी बहुत सारी बरकतों से नवाजता है। लेकिन ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम उसको कबूल करते हैं या नहीं। यहाँ हम देखते हैं इस फैमिली ने उस नौकर की बात मानी और कहा कि हम अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हैं, हम शादी के लिए रजामंद हैं। उन्होंने नहीं देखा था कि इसहाक कैसा है या वो कहाँ पे रहता है, वो अमीर है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो सारी बातें नौकर की सुन के क्या करते हैं, हाँ करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो उनको तोहफे देता जी आगे और लिबास निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और उसकी मां को भी कीमती चीजें दी। और उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया और रात भर वही रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरी आका के पास रवाना कर दो। सुबह बकायदा तौर पे उसकी क्या होगी, मंगनी की गई, उसकी मंगनी हुई। और सुबह उसने कहा कि मैं चाहता हूं मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं अपने आका के पास वापस जा सकूं, मैं इसको लेके जाना चाहता हूं। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने क्या की, देर करने की कोशिश की। आज कई बार हम भी जब तौबा करना चाहते हैं, हमारी फैमिली में से या हमारे आस पड़ोस के लोग जो हैं हमें तौबा करने से रोकते हैं, देर करने के लिए कहते हैं नहीं अभी वक्त नहीं है, अभी तो बच्चा है, अभी तो नासमझ है, अभी तुझे ये समझ नहीं, इसलिए तो अभी तौबा ना कर, तो बपतिस्मा ना ले। लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ पर यही पैसे चल रहा है कि वो देर करते जी। पहले थोड़ा सा और आगे जरा। रिबका के भाई और उसकी मां ने कहा कि लड़की को कुछ रोज कम से कम क्या कहा, कुछ रोज यहाँ पे ही रहने दे हमारे साथ, अभी हम इसको भेजना नहीं चाहते। कई बार हम भी यही काम करते हैं, हम भी कहते हैं नहीं अभी थोड़े और काम कर लेते हैं, थोड़े और दुनियादारी के काम कर लेते हैं, फिर तौबा कर लेंगे, फिर बपतिस्मा ले लेंगे। लेकिन फिर वक्त शायद हमारे हाथ में नहीं आएगा। यहाँ फैसला हमारे अपने हाथ में होता है, ना कि हमारे बाप बाप के या अड़ोस पड़ोस के लोगों के, किसी के हाथ में हमारा फैसला नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम इस फैसले को कर सकें। और यहाँ पे रिबका ने यही फैसला किया और उसने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पढ़े जरा। इसके बाद वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा कि मुझे ना रोको क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया। खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया है। यहाँ देखने को उसकी फैमिली को भी पता चल गया था कि ये जो कुछ हो रहा है ये खुदा की मर्जी से हो रहा है, ये आदमी जो आया है ये खुदा की मर्जी से आया है और हमारी बेटी की शादी खुदा की मर्जी से हो रही है। इसलिए वो मुखालफत में नहीं उतरे, लेकिन उसको रोक रहे थे, थोड़ा देर करना चाहते थे कि थोड़े दिन हमारी बेटी हमारे पास रहे और उसके बाद हम इसको भेजेंगे। जी आगे। मुझे रुखसत करते हो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा कि तू इस आदमी के साथ जाएगी? तो इस आदमी के साथ जाएगी तो खुदा यीशु मसीह के पास जाना चाहता है, तो खुदा यीशु मसीह को कबूल करना चाहती है। आज हमारे पास भी ये पैगाम है, क्या हम खुदा यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं या चाहती हैं? तो आज हमारे लिए मौका है कि हम खुदा को कबूल करें और कहें कि खुदा हम तेरे दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं। यहाँ रिबका से सवाल किया जाता है, क्या तू इस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार है? और रिबका क्या कहती है? बड़े जरा। उसने कहा जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगी। वो तैयार हो गई। ये खुशी की बात है जब आज हम भी तैयार हो जाते हैं खुदा की बंदगी के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसके पास जाने के लिए। जब हम तैयार हो जाते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। और फिर क्या आगे पढ़े जरा थोड़ा सा। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमी को रुखसत किया।
और उन्होंने रिब्का को दुआ दी और उसने उन्होंने कहा, रिब्का को दुआ दी, बहुत सारी दुआ दी। आज हमें भी जरूरत है कि जब कोई तौबा करता है, कोई खुदा के पास आना चाहता है, तो हम उसको दुआ दें, हम भी उसको दुआ दें कि खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे अपने में बढ़ने की तरक्की दे। हमें भी दुआओं के साथ उसको रुखसत करने की जरूरत है, लेकिन आज हम इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होते। जी आगे थोड़ा सा और पढ़ दें जरा। और उससे कहा, ऐ हमारी बहन, तुम लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल अपने किला रखने वालों के फाटक की मालिक हो। और रिब्का और उसकी सहेलियां ऊँट पर ऊँटों पर सवार हुई और उस आदमी के पीछे बोली। सवार के रिब्का को साथ लेकर रवाना हुआ और इसहाक बैरलई वही से होकर चला रहा था। वही से होकर क्या हो रहा था? चला रहा था। वो भी मिलना चाह रहा था रिब्का से। वो आगे से सफर करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और वो जब उसको दूर से देखती है तो अपने नौकर से पूछती कि ये कौन शख्स है, तो वो उसको बताता है कि ये मेरा आका है। और वो वहीं से उसकी तज़ीम के लिए ऊँट से नीचे उतर जाती है। आज खुदा की दुल्हन जो है वो कैसे खुदा यीशु मसीह को देखेगी? खुदा यीशु मसीह, यहाँ पे मैंने पिछली बार भी कहा था, इस कहानी में, इस सारे पैसेज में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ हमें खुदावंद यीशु मसीह नजर आता है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है और जो दुल्हन है वो उसके लिए श्रृंगार कर रही है, तैयार हो रही है। और एक वक्त आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, बादलों में आएगा। वहां पे हम देखते हैं इसहाक अपनी दुल्हन को आगे से लेने आ रहा है। और यहाँ पे आए जरा आगे थोड़ा बढ़ते इसको खत्म करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की तरफ हम थोड़ा सा रुख करते हैं। इसका पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 13 से लेकर 18 तक जब हम पढ़ते हैं तो जो मुलाकात रिब्का और इसहाक की हो रही थी, वही मुलाकात खुदा यीशु मसीह और उसकी दुल्हन की होने वाली है। जी पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 13 से पढ़ेंगे। 239 नंबर पेज है, 239 पेज नंबर है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 13 से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की बारी जुना उम्मीद है गम न करो। जी आगे। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। उसी के साथ ले आएगा। जब अपनी 1000 साल बादशाही के लिए आएगा तो उस वक्त अपनी दुल्हन को उठा लेगा, अपनी दुल्हन को उठाएगा। आज जरूरत है कि हम उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हों। जैसे रिब्का को लेने के लिए इसहाक आगे से मुलाकात करने के लिए आ रहा था, और ये बड़ा खूबसूरत मंजर होगा उस वक्त जब वो अपनी बीवी को देखने आया, उसको लेने आया आगे से, फिर उसको अपने घर में लेके गया। और आज जब हम खुदा यीशु मसीह की दुल्हन बनेंगे तो ये भी बड़ा खूबसूरत मंजर होगा। वो आसमान से आएगा और हमें अपने साथ बादलों में ले जाएगा, वो अपनी दुल्हन को अपने पास लेके जाएगा। आज हमें जरूरत है कि हम उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आज हम दुल्हन तैयार नहीं होगी तो फिर शायद किसी और को मौका दे दिया जाएगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन बन जाए। इसलिए आज हमारे पास वक्त है। और फिर हम जब इसहाक को देखते हैं तो ये पहला नबी समझ लें, जो भी बुजुर्ग समझ लें, ये वाहिद था जिसकी सिर्फ एक शादी हुई थी। उसने रिब्का के साथ ही सारी उम्र गुजारी। बाकी तमाम लोगों के बारे में लिखा है, किसी ने शादी की, किसी ने 2 शादियां कर ली, लेकिन ये वाहिद है जिसके बारे में लिखा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी सिर्फ अपनी दुल्हन, एक ही दुल्हन के साथ वो शादी करने वाला है, वो दूसरी शादी नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले तैयार हो, ताकि पहले वक्त में ही उसकी दुल्हन आसमान पर जब उठाई जाए तो आप भी आसमान पर उठा लिए जाएं। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिर को उठाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में